आज आफ्टरनून को आई वॉज एडिटिंग दिस प्रेजेंटेशन. आज के पहले के जो भी स्पीचेस थे, ऑन दिस फोटो देयर यूज्ड टू बी रिटन यंगेस्ट मुंबई का टू क्लाइम एवरेस्ट. लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज मैं जिसके साथ सामने बैठ रहा हूँ, ही ब्रोक माई रिकॉर्ड. सो मैंने वो निकाल दिया. सो एवरी स्पीच आई एवर वेंट टू, आई यूज्ड टू से दिस वन थिंग कि मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया 2019 में एट द एज ऑफ 24. इट्स नॉट अ वेरी यंग एज, राइट? एंड मुंबई जैसे शहर में why are there not young people who are breaking my record? So it took, I think, 4 years, from a big city to break this small record, like of that age. So very glad to be sitting in front of Mithil. All the best to you. Why climb mountains, right? Why do any adventure? जैसे लोग, people sometimes swim with sharks, plane से छलांग मारते, एवरेस्ट चढ़ते. लॉजिकली इज एब्सोल्युटली स्टूपिड, है ना? ये सब पागलपंती का ही चीज है, बट फिर भी लोग करते हैं. आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइज, एडवेंचर या समथिंग अनकंफर्टेबल, व्हाई डू पीपल डू इट? मोस्ट पीपल दैट आई सी हु आर वेल टू डू बट स्टिल आर लुकिंग फॉर some adventure or doing something uncomfortable. Any reasons that comes in your mind? क्यों ऐसा उल्टा सीधा काम करने का लोगों को मन करता है? Absolutely. See, what I realized, and this is where I will begin my speech. No matter how comfortable one's life is, there is something within every human being. Instinctively they know कि without discomfort, without some level of suffering, they will not grow and learn. दो तरह के लोग होते हैं, या फिर it's better to say कि दो तरह की life situations होती है. Some people are born in a condition where their life is an adventure by itself, right? वो बात अलग है. अभी मेरे जैसे लोग जो एकदम comfortable life में पैदा हुए हैं, how to grow as a human being, how to suffer, so that is where adventure comes in. अगर life आपको hardships नहीं दे रही है, you consciously put yourself into hard situations. And this is something I learned as a kid, and it all started for me when I was 15 years of age and I saw this sunrise from the top of Mount Kalsubai, जो हमारे state का highest peak है. 15 साल का था मैं, and just एक thought मेरे mind में आया कि अगर sunrise इस छोटी पहाड़ी से इतना खूबसूरत है, तो इस दुनिया के हाईएस्ट पीक से कैसा होगा. एंड आई थिंक दैट वाज माय टाइम, दैट वाज द व्हेन आई वाज गोइंग डाउन. एक ही चीज माइंड में चल रही थी कि एवरेस्ट के टॉप से सनराइज देखने के लिए क्या करना पड़ेगा. स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड इवेंचुअली समझ में आया कि अगर आपको पहाड़ चढ़ना है तो इंडिया में कुछ माउंटेनियरिंग कोर्सेज होते हैं. So it's recommended to go there and learn things. So this is a picture from my mountaineering course. The uniform में सब लड़के खड़े and this is where the skills that we needed to climb mountains were taught to us, right? And now ये जो पागलपन था, सपना था पहाड़ चढ़ने का, now I was equipped with those skills to climb mountains. And I shifted to the Himalayas in Ladakh for a span of 2.5 years just to stay there, just to climb mountain after mountain, mountain after mountain. Because classroom में बैठ के या in a institution आप skills तो सीख सकते हो, लेकिन जब तक उसको apply नहीं करते तब तक उसका कुछ फायदा नहीं है. So in these real life expeditions that I did, that is when I learned कि अच्छा ये जो skills मैंने सीखे हैं, मौसम खराब होता है तब क्या करने का, किसी की तबीयत खराब होती है तब कैसे उसको डील करते हैं, खुद की तबीयत खराब होती है तब कैसे डील करते हैं, हाउ टू डील विद फेलियर्स. सो very unfortunately very close friends of mine dying in front of me. So when you go through these experiences on these mountains, that's what shapes you as a wholesome mountaineer, right? तो एवरेस्ट ऐसा नहीं है कि अच्छा चलो सपना देखा, थोड़ी ट्रेनिंग करके आप चढ़ के आ गए. इट्स years of experience that is required to make you into a well-rounded product to be able to go there. ये ऐसे बहुत सारे peaks मैंने climb किए. ऐसे this is a picture from a mountain called Friendship Peak. So ऐसे बहुत सारे, I think over 15-20 peaks I climbed in a span of 2.5 years. Just me और couple of friends. पैसा तभी तो था नहीं कि एक्सपीडिशन कंपनी के साथ जा सके हम लोग, तो 2-3 दोस्त सारा 35-40 kg का बैकपैक उठा के we used to try to go up
एंड बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस इसमें मिले. एंड पैरेलली आई न्यू दैट इफ आई वांट टू क्लाइंब एवरेस्ट, फिजिकल फिटनेस इज गोना बी द फैक्टर विच विल से कि वहाँ जाके मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा पहाड़ पे. सो इट टुक मी आई थिंक 1.5 years of proper physical fitness regime to prepare myself for the challenge that is Everest. एक कहावत है हमारे फील्ड में कि to go to the top of the world you need to build a top of the world mind and a top of the world body, है ना. And I think this is where the transformation happens. अब पहाड़ पे जा रहे हो, ठीक है, चलो 1 महीना जाके आओगे, but the preparation, showing up every day when you have nobody to answer to, रोज सुबह 4 बजे उठना, if you don't wake up nobody is going to say आज क्यों नहीं उठा ट्रेनिंग के लिए. बट नहीं, आपको पता है कि मैं अगर खुद को ये सवाल पूछूं क्यों नहीं उठा तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा उसका. Showing up every day, putting in 5 to 6 hours of training every day, and I think that is where the real transformation as a human being happens, when nobody is watching you but you are still intensely working towards something, right? And ये फोटो है फ्रॉम वन ऑफ माई ट्रेनिंग हाइक्स. आई यूज टू, ये जो बैग है उसके अंदर आई थिंक 25-30 kg के पत्थर और वो पानी के गैलन भरे हुए हैं, उसको लेके पहाड़ चढ़ते थे. तो जैसे मैंने कहा ना, लॉजिकली एकदम फालतू चीज़ है ये, क्यों करना है ये, बट देर इज समथिंग इन दिस सफरिंग दैट यू लर्न एज अ ह्यूमन बीइंग. एंड इसके साथ साथ as you guys might know that Everest expedition is a very expensive affair. It costs 30-35 lakh rupees to climb Everest. And तभी 21-22 साल का था मैं, देखता था कि स्पॉन्सरशिप्स होती है, रेड बुल, माउंटेन ड्यू, वो स्टिकर लगा के, लोगो लगा के जाते थे ये सब बड़े बड़े क्लाइंबर्स. So I thought कि ऐसे होता होगा. But when I started approaching these sponsors, the response was very disheartening and mountaineering was not recognized. छोड़ो, लोग समझते ही नहीं थे ये क्या है. पहाड़ चढ़ना है, उसके लिए 30-35 लाख रुपए लगते हैं. कुछ लोगों ने तो वहां तक कहा अच्छा चढ़ना भी और पैसा भी देना है. अभी हाउ विल यू आर्ग्यू विद दैट लॉजिक. इट वाज अ हार्ड जर्नी. स्पोक टू ऑलमोस्ट 150 potential sponsors, no response. The way I was able to raise the funds was through crowdfunding. Friends, family, relatives, followers who were following my journey, they saw कि नहीं ये लगा हुआ है, जो बन सकता है दो इसको. एंड उसके ऊपर फिर लोन लिया बहुत बड़ा, जो आई थिंक मैं 3 months पहले ही खत्म हुआ वो लोन. 5 साल चला मेरा वो लोन एवरेस्ट का. एंड ऐसे करके यहाँ वहाँ, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी बट एकदम शॉर्ट करके बोल रहा हूँ. मोर देन क्लाइंबिंग, harder than climbing Everest was raising the funds for Everest. And now I had the funds and I was on my way to climb Everest. This is a picture clicked on the Everest base camp in Tibet. So Everest climb करने के 2 रास्ते हैं, एक है नेपाल से, एक है तिब्बत से, जो अभी चाइना है. So 95% people who climb Everest climb from the Nepalese side, जहाँ से first climb भी हुआ था. 5% लोग कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा उल्टा करने की आदत रहती है बचपन से, वो लोग यहाँ पे जाते हैं. तो इट इज लेस डेंजरस बट मोर हार्ड इन टर्म्स ऑफ वेदर एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल क्लाइंबिंग एंड इन टर्म्स ऑफ ऑल्टीट्यूड गेन. आप ऑल्टीट्यूड गेन बहुत फास्ट करते हो इस साइड पे, तो बॉडी का जो अडेप्टेशन प्रोसेस होता है, इफ इट इज नॉट अप टू द मार्क, सिकनेस विल हैपन एंड एक्सपीडिशन इज फिनिश्ड. एक्सपीडिशन फिनिश मतलब क्या, 30-35 लाख रुपए आपके गए. So this is a picture from the puja ceremony at the base camp. And पूजा के बाद it is the official beginning of the expedition. And आप देख सकते हो कैसी खड़ी चट्टान है ये. This is a picture between advanced base camp and camp 1. That is me. वैसे कोई भी हो सकता है, सब एक जैसे दिखते हैं, but that is me. And this is how you look when you are climbing. Oxygen mask लगा के एकदम, it's a nice look for a photo. And it's very hard as you gain altitude. The human body is not designed to function at the cruising altitude of a 747, right? No organism survives at that altitude. But इंसान देखो, human beings are so fragile कि अगर मैं स्टेज से उतरते हुए अगर मैं गिरूं और मेरा सर लग जाए तो I can die.
बट ऑन द अदर हैंड वेयर नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, वहां पे इंसान जाके अपना कारनामा दिखाता है. सो यू नो दिस इज द फाइन लाइन बिटवीन द weakness of a human being and the strength of human being, where we have to balance and always, you know, not go on the weak side but stay on the stronger side. And that is what mountains teach me कि साला यहाँ पे एक organism भी नहीं है but इंसान है यहाँ पे. It's beautiful what human beings are capable of, right? And as a human being, what we get to experience up there, it's beyond the power of 26 letters to be explained. And as we go higher, life gets very hard. At above 8,000 meters, मतलब एवरेस्ट का हाइट है 8848 मीटर्स, एंड 8000 मीटर के ऊपर का एरिया को डेथ जोन कहते हैं. डेथ जोन क्यों? क्योंकि मैक्सिमम माउंटेनियरिंग डेथ्स हैपन above that area. So once you are up there, your body is literally shutting down slowly. All your processes, digestion process, your thinking process, your literally every process is shutting down. वहाँ तक कि अगर आप खाना खा रहे हो तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको, ऐसे कि वैसे फेंक देगा, बिकॉज डाइजेशन में जो एनर्जी वेस्ट होगी, द बॉडी वांट्स टू कीप दैट एनर्जी टू कीप द कोर ऑर्गन्स अलाइव. तो लाइफ इज वेरी हार्ड अप देयर. यू आर लूजिंग योर ब्रेन सेल्स, योर बॉडी इज ईटिंग अप इट्स ओन मसल्स टू सर्वाइव, बिकॉज खाना तो जा नहीं रहा है लेकिन चढ़ना तो है आपने. एनर्जी कहाँ से आएगी? पहले फैट से आती है, फिर मसल्स को खाता है. सो बॉडी इज ईटिंग इटसेल्फ अप. इट्स अ वेरी वेरी हार्ड लाइफ अप देयर. एंड दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम द लास्ट कैंप 3. आप देख सकते हो कैसी खतरनाक स्लोप पे कैंप लगा है ये. एंड दिस इज द हाईएस्ट कैंप इन द होल वर्ल्ड. यहाँ से वो जो ऊपर दिख रहा है, दैट इज द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. दिखने में तो लगता है कि अरे ऐसे 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 यहाँ से राइट लेफ्ट करके चढ़ जाएंगे, लेकिन जब शुरू किया यहाँ से रात को, समिट दिख रहा है अंधेरे में, मूनलाइट में, आ ही नहीं रहा है पास में, आ ही नहीं रही पास में, आ ही नहीं रहा है पास में. फिर मेरे को लगा कि ऊपर देखने से कोई फायदा नहीं है. फोकस ऑन योर स्टेप्स. मुंडी नीचे रख के जब तक एक पैर के आगे एक पैर चल रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड ऑन द वे, डेथ जोन को डेथ जोन क्यों बोलते हैं इसका लाइव उदाहरण मिला मुझे वहां पे. ऑन द वे 16 डेड बॉडीज दिखी मुझे फ्रॉम पीपल फ्रॉम द पास्ट एक्सपीडिशंस हु हैड डाइड. नहीं, वहाँ से बॉडी रिकवरी नहीं होती, रेस्क्यू पॉसिबल नहीं है. पीपल हु आर गोइंग देयर स्पेशली फ्रॉम द चाइना साइड, क्योंकि वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स अलाउड है ही नहीं इस कंट्री के लॉ के हिसाब से. तो आपको पता है अगर आपके 11 नंबर के पहिए नहीं चल रहे तो आपको कोई लेके नहीं आएगा. आपके पैर से अगर नहीं आ सकते, इट इज गेम ओवर. जब ये डेड बॉडीज को आप देखते हो, यू नो, आई हैव गूज बम्स राइट नाउ. मैंने ये कितनी बार ये कहानी बताई होगी मुझे, यू नो, आई हैव लॉस्ट अ ट्रैक, बट एवरी टाइम आई स्पीक अबाउट दिस इट हिट्स मी फ्रेश एज अ रियलाइजेशन कि ये लोग जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, दे यूज्ड टू बी लाइक मी, फुल ऑफ पैशन, ये वो एवरेस्ट चढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. एक गलती की, क्या हो गया? आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ each and every step I will take consciously, and इस हाइट पे, इस स्टेज पे गलती मतलब it's game over. With that thought in my mind, you know, human beings are so fascinating. मैं 5 मिनट और लूँगा सर. I know थोड़ा over the time गया, लेकिन मैं 5 मिनट और लूँगा. You know, when I lost the train of thought, क्या बोलने वाला था मैं? हाँ, डेड बॉडी को लेके कुछ तो बोलने वाला था मैं, कोई बात नहीं. So yeah, human beings are so fascinating. जैसे स्टार्टिंग में मैंने बॉडी देखी, एकदम शॉक में था. आफ्टर 4th and 5th बॉडी, ह्यूमन बींग्स गेट यूज टू इट. अच्छा एक और, मतलब समथिंग सो एक्सट्रीम, बट ह्यूमन बींग्स स्टिल गेट यूज टू इट विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू आवर्स. जस्ट साइकोलॉजिकल फैसिनेशन, यू नो, व्हाट आई ऑब्जर्व इन माई सेल्फ. आई डोंट रीड बुक्स, आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स, बट आई लाइक टू ऑब्जर्व माई ओन माइंड एंड माई ओन एक्सपीरियंस. मैं जो भी बोल रहा हूँ उससे ही आता है. एंड विद दिस इन माइंड धीरे धीरे चलते रहा ऊपर. एंड oh, this is how we sleep in the tent, by the way. कुंतल है बाजू में. I climbed Everest with him, so we were tent partners. So ऑक्सीजन लगा के सोना पड़ता है हमने. And with this in my mind, I kept going, and this is how the summit looked at 3 in the morning. Full moon था.
बुद्ध पूर्णिमा का रात था. वी वर नॉट इवन यूजिंग आवर टॉर्चेस का कोई काम नहीं था. इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. एट दिस पॉइंट द समिट इज जस्ट 15 minutes away, and as Mithil was also sharing, समिट पे नहीं, लेकिन समिट के पहले कुछ होता है कि आपको पता है कि अब तो पहुंच के रहेंगे, अब तो पहुंच जाएंगे. I got down on my knees here and started crying like a baby. You know, 9 years from the age of 15, कलसुबाई पीक से लेके 24 साल की उम्र तक, 15 से 24. This age is the most important years in anybody's life, right? For me, सब छोड़ छाड़ के, करियर को छोड़ के, रिलेशनशिप्स को छोड़ के, दोस्तों को छोड़ के, दोस्तों को ब्लॉक कर दिया था मैंने, क्योंकि वो लोग फ़ोन करते रहते हैं कि आज यहाँ पार्टी जा रहे हैं, यहाँ पार्टी जा रहे हैं. ब्लॉक कर दिया था उनको मैंने एवरेस्ट के लिए जब तैयारी कर रहा था सब. आई वॉज लाइक, इफ माई लाइफ इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड एवरेस्ट, if whatever action I am doing, even if I am watching a video or a movie, or even if I am talking to somebody, if it has nothing to do with Everest, मैं वो नहीं करूँगा. उस लेवल का एक, वो कहते हैं ना, अर्जुन वाला, नाम भी वही है मेरा, तो अर्जुन के साथ ही मिलता जुलता. सो 2 साल मैंने एकदम आइसोलेशन में स्पेंड किए. वॉज वेरी हार्ड एज अ यंग बॉय व्हेन यू सी द होल वर्ल्ड हैविंग फन एंड यू नो गेटिंग जॉब्स विथ हाई पैकेजेस, एंड यू नो 2 साल में देखते हो ये गाड़ी ले लिया, ये घर में डाउन पेमेंट कर दिया, ये वो. यू फील, यू क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या कर रहा हूँ मैं पहाड़ के लिए. बट नहीं, दीज आर ऑल द क्रिएशंस ऑफ योर माइंड. फालतू की चीजें है ये. आपका आंख वहां पे है, चलते रहना. घोड़े है ना, ऐसे चलते हैं ना, ये ब्लाइंडर्स लगा के, क्यों साइड का कचरा ना दिखे उनको, इसके लिए. एंड 9 years लेटर आई वॉज फाइनली हियर, एंड वो सारा लिटरली फ्लैशबैक, मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट वो सारे लोग खास करके जिन्होंने बोला था तू नहीं कर सकता, मैं उनको वहां से मैसेज देने को ट्राई कर रहा था कि देख बच्चा, देख तू करके दिखाया. यंग एंड स्टूपिड, यू नो, 24. एंड विद दिस थॉट मेरा शेरपा आया मेरे पास, बोलता है पार्थ 15 मिनट दूर है, उधर जाके रो, उठ अभी. एंड आई started walking, and the tears coming out of my eyes were getting frozen on my cheeks here. It was, I think, -45 degrees up there, and हमें मना किया गया था कि रोना नहीं है, क्योंकि the tears can freeze in your eyeballs. मतलब it's a very dangerous situation, but कहाँ ये, you are on the very top of the world, नहीं सोचते आप, the emotions they get the better of you. फोटो इतना खास नहीं है, बट पहुंच गया ऊपर. 23rd May 2019, आई जस्ट सेलिब्रेटेड द 5th year एनिवर्सरी. 5 साल हो गए इस बात को. एंड मेरे फोन में 1% बैटरी थी, साइड में जाने का भी टाइम नहीं था. तो मेरा शेरपा ने बोला जहां है उधर बैठ, वरना फोटो भी नहीं मिलेगा तेरे को. तो वहां बैठ के तिरंगा खोला. एंड थैंक यू. जिस देश के मिट्टी का खाना खाया, जिस देश के संस्कार से ये मन बना, छोड़ो मैं अभी इमोशनल हो जाऊंगा. उस देश को मैंने कुछ वापस दिया, है ना. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग दैट एज अ 24-year इंडियन यू शो द वर्ल्ड की एक इंडियन यूथ किस चीज पे, you know, what he is capable of. And it was a very beautiful feeling. I spent 15-20 minutes up there. You can see a beautiful view from up. These are clouds below us, you know. ये सारे जो पहाड़ है ना, from down if you look, they look so big and daunting, और ऊपर से छोटे पत्थर कंकड़ जैसे लगते हैं मिथिल. It's so beautiful, all these small peaks that we see, Amatablam, Lhotse, ऊपर से ऐसे दिखते नीचे सब ना. It's beautiful. This is a shadow of Everest. You can see triangular, proper equilateral triangle. It was a once in a lifetime sight for me, and what a beautiful journey it was. And this was pictures taken on the way down, because रात को तो अंधेरा था, तो कुछ समझ में नहीं आता, बस तुमको आगे वाले तुम्हारे स्टेप्स दिखते, और अगर आगे कोई चल रहा है तो उसका पिछवाड़ा दिखता है बस. That is your sight throughout the night. But when you are going down, you actually realize कि क्या चढ़ के आया मैं कहाँ पर था कि ये कब चढ़ा रात को मैं. एंड यहाँ पे मेरा शेरपा एक जोक बोलता है मुझे, वो मुझे रोकता है, बोलता है पार्थ, मुझे लगा कुछ एकदम सीरियस बात करनी है उसको. बोलता है इफ यू डिसाइड टू फॉल,
राइट साइड में नेपाल है 9,000 फीट, लेफ्ट साइड में तिब्बत है 11,000 फीट। बोलता है इफ यू डिसाइड टू फॉल ऑन द टिबेटन साइड यू विल लिव लॉन्गर। ऊपर से गया, किसको समझा? यस 9,000 फीट में जल्दी पहुंचोगे, 11,000 फीट में थोड़ा फटी पड़ी है, डर लग रहा है, बट वहां पे द शेरपा पीपल दे सी यू दैट यू आर एग्जॉस्टेड एंड दे आर सच ह्यूमरस पीपल। वो भी इंसान है, वो भी थक जाते हैं, बट जस्ट टू मेक यू अगेन लाइवली cracked a very bad joke, but that's how beautiful they are. And this is also a picture of a 150 feet section called as second step. दिखता है छोटा सा लेकिन बहुत लंबा है ये, and it takes almost 30-35 minutes to climb this at this altitude. हर एक स्टेप पे आपको रुक के ऐसे पूरा आवाज करके सांस लेनी पड़ती है. It's so hard up there. And आगे नीचे आते आते भी बहुत सारी चीज़ें हुई. We lost a very good friend of ours from our team right in front of my eyes on this section. And you see, that ये so called आपके जो सपने वपने हैं, it means nothing in front of life, right? ये बंदा जो था, he had a 8-month-old daughter back home, and then you start asking yourself, what you are doing, is it worth it? And it's still a question in my mind. कभी लगता है कि वर्थ इट है, कभी लगता है नहीं, लगता है कि नहीं वर्थ इट है. तो इट्स ऑलवेज अ फाइन लाइन, एंड आई हैव ऑलवेज मेड श्योर कि इतने पहाड़ पे गया हूँ, बट कभी ऐसा लगे कि तबीयत खराब है या कंडीशंस खराब है तो वापस आ जाओ. क्या फ़र्क पड़ता है, पहाड़ी है, क्या हो जाएगा. अगर आप हो तो वापस जाओगे. This is a picture of me after we came back to the base camp. You can see how the face gets burnt and roasted. आलू की तरह रोस्ट हो जाते हो आप, बिकॉज द यूवी रेज आर सो स्ट्रॉन्ग, द विंड्स आर सो स्ट्रॉन्ग ऑन योर फेस. एंड बट खुश तो बहुत था, बिकॉज ऑन द समिट देर इज नो रीजन टू सेलिब्रेट, बिकॉज यू आर ओनली 50% देयर. द हार्डर पार्ट इज रिमेनिंग, एंड दिस वॉज द मोमेंट वेयर आई एक्चुअली फाइनली फेल्ट कि एक्सपीडिशन खत्म अब हुआ, जब मैं माँ के पास वापस आया. एंड व्हेन आई वाज अप देयर एंड व्हेन यू सी सो मेनी पीपल डाई इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने ऊपर वाले को एक चीज़ कही थी कि अगर आप सुन रहे हो तो मुझे घर पहुंचा दो. कभी भगवान से आई वाज अ कट्टर नहीं मानने वाला, यंग एंड स्टूपिड बट कहीं ना कहीं जब मैं ये मुंबई गेट, ये एयरपोर्ट का गेट एग्जिट कर रहा था, एंड आई सॉ माई पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड्स इन फ्रंट ऑफ मी, आई जस्ट थॉट कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जिसने जर्नी को इतना स्मूथ, इतना ब्यूटीफुल बनाया. एंड आफ्टर यू क्लाइम एवरेस्ट, और आफ्टर यू गो थ्रू द हार्डशिप्स ऑफ क्लाइंबिंग एवरेस्ट, अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंजेस विद इन यू, एंड एवरी डे I still learn something from that experience. The well of Everest, the wisdom of that well is so deep that I wish that I pray that my lifetime is enough to drink up all that water from that wisdom that Everest gave me at a very young age. मुझे समझ भी नहीं है आज भी कि मैंने क्या किया है, बट जैसे मैं बड़ा होता हूँ कुछ ना कुछ उससे मैं सीखता हूँ, एंड लाइफ में अप्लाई करके आई मेक श्योर दैट मी बीइंग born on this planet is good for others also. And in 2022 I went for an expedition to a peak called Mount Manaslu, where we had to turn around because of very bad weather conditions, and the team was hit by an avalanche and we lost. जो मेरे जो क्लाइंबिंग शेरपा थे, एक आदमी के साथ एक गाइड होता है वहाँ के जो लोकल होते हैं ना, so we lost my climbing Sherpa there in that avalanche, and we had to cancel that expedition there. This October I am planning to revisit Manaslu for a second attempt, and training चल रही है, फंड रेजिंग चल रहा है, बिकॉज अगेन अभियान एक्सपेंसिव है. सो आपका आशीर्वाद बना रहे, बाकी मैं लगा हूँ, and I will keep making India proud and all of you proud. Thank you so much.